A very good morning, children. कैसे हैं आप सभी? Welcome to the psychology classroom. So, children, first of all, you should be very energetic and very excited for doing your studies. It's very important for you all. Secondly, it's very important for you all to do hard work, because usually if you take the class 11 casually कि नहीं ठीक है, so it will be somewhere create a problem for you all. So don't consider it so lightly and casually, take it seriously, okay? And class 11 is equally important as the class 12, because in the class 11 you basically get a base. आपको क्या होता है? You get a base आपको मिलता है for understanding anything. किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको एक बेस मिलता है. Fine? So this is important. Okay? So एक बेस मिलता है आप सभी को, और बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि अगर बेस नहीं बना होगा तो यू विल बी अनएबल टू अंडरस्टैंड द मोर कंसेप्ट्स. आपको और भी कंसेप्ट्स को समझने में थोड़ा मुश्किल होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो इन द क्लास 12, सो मेनी थिंग्स, ऐसा नहीं समझेंगे आप कहीं से भी. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ माइंड सेट कि क्लास 11 कंटेंट विल नॉट गोइंग टू बी कम इन द क्लास 12. ठीक है, क्लास 11 के कंटेंट आपके क्लास 12 में नहीं आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, क्लास 11 इज लाइक अ बेस फॉर यू ऑल, सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ चिल्ड्रन, वी आर स्टडिंग द चैप्टर मेथड ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी. ठीक है, दिस इज योर चैप्टर 2. द चैप्टर नेम इज मेथड्स ऑफ inquiry, methods of inquiry in psychology. Methods of inquiry in psychology. So children, this is a chapter name. I hope the board is visible to you. Everything is properly visible. So method of inquiry in psychology. In this chapter, we have discussed up to the limitations of psychological inquiry. Psychological inquiry के limitations क्या हैं, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था. हमें क्या पढ़ना है अब? हमें ethical issues पढ़ने हैं. So children, basically we are on the end of this chapter. So I just hope आप लोग videos देख रहे होगे. For your better understanding, you must watch the video and ask the questions in the classroom if you have any doubt. Okay, so ethical issues means what are the rules and regulation which a psychologist need to follow, or the experimenter need to follow when they experiment on a subject. जब वो सब्जेक्ट पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वो उनको फॉलो करना चाहिए. So there were some of the APA guidelines also. APA, the full form is APA, full form है American Psychiatric Association. So I should write it down. First of all, you should know the full form of APA. APA means American Psychological Association. So the full form of APA is American Psychological Association. APA ने कुछ guidelines दिए हैं for the ethical issues, that are the things which you should follow. ठीक है? So APA के guidelines में है, सबसे पहले तो ये कि you should respect you should respect the other person. You should respect the privacy of the other person. You should completely have a confidentiality.
ठीक है, you should maintain a confidentiality. Fine. So these are the things related to the American Psychological Association guidelines, that you should respect the other person, have some privacy and confidentiality. Don't share the subject information with other one. This is also very mandatory part. Usually we will do such kind of thing which is not going to be beneficial. ठीक है, सही नहीं होता. And these are some of the guidelines which APA has given for the researcher who research, for the experimenter who experiment, for the psychologist who deal with his or her patient. So they have to follow these ethical guidelines. Fine. So let's study about those guidelines. उन guidelines के बारे में हम लोग study अभी करेंगे. Fine. So क्या क्या ethical issues हैं जिनको हमें follow करना चाहिए? What are the ethical issues which we have to follow? So there are so many children, and one by one we will discuss each one of them and in detail में discuss करेंगे. So सबसे पहला ethical issue है, the first one is the informed consent. Informed consent. Informed consent में I think अभी आप लोग भी consent form submit कर रहे हो. So you all are aware about the consent. What is the meaning of consent? Okay, what is the meaning of taking the consent? Consent लेना means it's just like taking a permission of anything. कि आप ये चीज कर रहे हो तो you were allowed to do such kind of thing. So informed consent. Informed में word है inform. Inform मतलब होता है providing an information, providing the detail. Fine. So informed consent का मतलब ये होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है, the subject whom you are doing the practical, the experimentee on whom you are doing the experiment, or any sample, any person you have taken for your research, or any that person who is involved in your survey. So before asking him or her about his or her personal information, you should give the informed consent or take the consent from the person. Okay, so let's elaborate it. Basically कहने का मतलब ये है कि आप जिस पे भी प्रैक्टिकल कर रहे हो या सर्वे कर रहे हो, उस पर्सन को पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद हिज और हर पर्सनल इंफॉर्मेशन. आप उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन का क्या करोगे, क्यों ले रहे हो, व्हाई यू आर टेकिंग इट. So everything informed means everything should be informed to the subject. आपके सब्जेक्ट को सारी इंफॉर्मेशन, द सब्जेक्ट, योर सब्जेक्ट शुड हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन. ठीक है, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए. देन कंसेंट वर्ड इज ऑल्सो, सो यू टेक अ कंसेंट ऑल्सो दैट आई एम टेकिंग यू एज अ सैम्पल और एज अ टेस्टी or as a experimentee in my experiment. So are you willing to do it? Okay, you take a consent also from the subject. Very important कि मैंने आपको inform कर दिया और then I have taken a consent from you. So this is very important, informed consent. ठीक है, यानी two things are involved here. First is informed, आपको information भी देनी है, and then आपको consent भी लेना है. Fine. So one ethical issues is clear to you. This is one of the ethical issue. ये एक तरह का ethical issue है या ethical guidelines है which a psychologist need to follow. एक ethical principle कह सकते हो है जिसे कि psychologist को follow करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. Informed consent, आपके सब्जेक्ट को कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड यू विल टेक द कंसेंट ऑल्सो एंड एग्रीमेंट ऑल्सो फ्रॉम योर सब्जेक्ट एंड फ्रॉम योर पार्टिसिपेंट. फाइन.
So I hope it is clear, informed consent. So यहाँ ये तो clear ही हो गया होगा. Next, moving to the next point, the next ethical issue. Children, one more thing, in case after watching the video, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है, आपको लगता है मुझे ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा है या दिस वन इज लेफ्ट, ओके, तो अगर कुछ भी डाउट होता है, आपको लगता है कि दिस पार्ट इज नॉट अंडरस्टैंड, यू विल डेफिनेटली आस्क द क्वेश्चन इन द क्लासरूम. ओके, सो इन्फॉर्म कंसेंट के बाद नेक्स्ट एथिकल इश्यूज है वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन. वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन जो आपका सब्जेक्ट है, बहुत ही जरूरी है कि वो वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन करे. वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन, यू नो द मीनिंग ऑफ वॉलेंट्रली एंड इनवॉलेंट्रली. आई थिंक ये तो आपको मालूम होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री मीन्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री मीन्स आप अपनी मर्जी से, विद योर ओन कंसेंट, with your own self, you are doing or you are participating in anything. Involuntarily means you are not by your own self participating. Somebody is forcing you or somebody is saying you or under some pressure you are participating in that particular event. So that is an involuntary. So participating in any kind of research, जैसे ही जो psychologist, being a psychologist और being a researcher, एक psychologist होने के नाते, एक researcher होने के नाते, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप, it is very important कि आपका सब्जेक्ट जो है वो voluntary participation करे. मतलब वो अपनी मर्जी से आपके प्रैक्टिकल में आए, आपके सर्वे में पार्टिसिपेट करे, आपके एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करे, आपके टेस्ट में पार्टिसिपेट करे. इट्स नॉट लाइक दैट सम काइंड ऑफ फोर्स वाज देयर कि नहीं मेरे प्रैक्टिकल में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, यू हैव टू बी अ सब्जेक्ट, ओके, नहीं आप किसी को पकड़ लिए जबरदस्ती ले आ रहे हो. इट इज नॉट लाइक दैट. नथिंग विल बी डन फोर्सफुली. योर सब्जेक्ट विल पार्टिसिपेट इन योर प्रैक्टिकल, इन योर सब्जेक्ट वॉलेंट्रली. अपनी मर्जी से वो आएगा, ठीक है, टू गेन सम नॉलेज, टू गेन सम एक्सपीरियंस, टू गेन सम लर्निंग. ठीक है. सो दीज टू एथिकल इश्यूज वर वेरी क्लियर टू यू ऑल. इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन. सो दीज टू आर क्लियर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन. What is the third part? Debriefing. Debriefing means, what is the debriefing? What we do in that one? Debriefing. Debriefing में एक और चीज आती है. There was a word deception. Deception का मतलब होता है कि there should not be any kind of, you can consider that there should not be any kind of miscommunication. ओके, डिसेप्शन की हिंदी मीनिंग होती है धोखा बेसिकली, तो चीट. ओके, सो आप चीट नहीं करेंगे सब्जेक्ट से, अपने डिसीव नहीं करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन आप उससे हाइड नहीं करेंगे. ठीक है, यू गिव हिम और हर अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन. ठीक है, आप उसको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दोगे. डिसेप्शन अलाउड नहीं है. एंड डिसेप्शन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डीब्रीफिंग. डिसेप्शन एक तरह से पार्ट है किसका? डीब्रीफिंग का. सो डीब्रीफिंग करने का मतलब ये है होता है, डीब्रीफिंग मीन्स एक्सप्लेनिंग द एक्सपेरिमेंट एंड गिविंग ऑल द डिटेल्स, ऑल द नेसेसरी डिटेल्स टू योर सब्जेक्ट. आप अपने सब्जेक्ट को अपने प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व कर रहे हो, आप सर्वे कर रहे हो, यू कलेक्टिंग एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन, देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, देयर डेमोग्राफिक डाटा, देयर फिजिकल डेटा, देयर फिजियोलॉजिकल डेटा. सो यू शुड इन्फॉर्म. डीब्रीफिंग यानी ब्रीफ करना इन डिटेल. डीब्रीफिंग का जो डी है, डी डिनोट्स फॉर द डिटेल. ओके, डीब्रीफिंग डिटेल में ब्रीफ करना. ठीक है. To whom you we have to do the debriefing?
we have to do the debriefing to the okay. So debriefing means डिटेल में ब्रीफ करना अपने सब्जेक्ट को, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना कि what are the things and what are the requirement you want from the subject, which kind of information you will take. Okay, so the three ethical issues I had discussed with you: informed consent, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, डीब्रीफिंग. डीब्रीफिंग में ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिसेप्शन. आपको डिसेप्शन नहीं करना है किसी भी हाल में, हाइड नहीं करना है, चीट नहीं करना है अपने सब्जेक्ट को. ठीक है, वॉट एवर विल बी द रीजन, आप कंसेंट ले रहे हो, द सब्जेक्ट इज पार्टिसिपेटिंग वॉलेंटरली, तो आप कहीं से भी डिसेप्शन नहीं करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट में. आप सारी इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट को देंगे, किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन को आप हाइड नहीं करोगे. ठीक है, आगे बढ़े. यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया एथिकल इशू. सो इन्फॉर्म कंसेंट यानी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है अपने सब्जेक्ट को, और उसके बाद उससे कंसेंट भी लेना है कि your subject is agree or not in participating your practical. वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होना चाहिए सब्जेक्ट का, वो अपने से पार्टिसिपेट करें. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ फोर्स, नो एनी काइंड ऑफ फोर्स, नो एनी काइंड ऑफ फोर्स. ठीक है. डीब्रीफिंग यानी डिसेप्शन, डिसेप्शन यानी डिसेप्शन नहीं होना चाहिए, ये डीब्रीफिंग का ही पार्ट है. और डिटेल ब्रीफिंग करनी, डिटेल इंफॉर्मेशन देनी. ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया. आई एम गोइंग टू रब इट विद द होप आपने सारे पॉइंट्स लिख लिए होंगे. Next, fourth ethical issue which you have to follow is sharing the okay. So next part is the sharing the results of the study. सबसे पहले हमने पढ़ा कि वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होना चाहिए. ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो अपनी मर्जी से आपके एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करे. इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ फोर्सेबल. ठीक है. वॉलंटरी पार्टिसिपेशन के बाद हमने पढ़ा कि इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए. Whatever the information is regarding the practical, it should be informed to the subject, and consent is taken from them that yeah, they are agree or willingly participating in your practical. After the informed consent, there should be debriefing यानी detail information, detail briefing आप करेंगे subject को अपनी. After the debriefing, one of the other ethical issue which a psychologist need to follow is sharing the results of the study. Yeah, it is also one of the part of ethical issue. ये भी ethical issue का ही part है. Sharing the results of the study का मतलब ये होता है कि आपने subject पे study किया, you have done a study on your subject and study was done. This is one part. Okay, you have given all the necessary instruction and information to the subject. This was also done. Now what is the main point? The main point is now you have to share the results of your study also with the subject. आपने स्टडी की, आपका जो रिजल्ट आया वो आपको अपने सब्जेक्ट से शेयर करना है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर एथिकल इशू. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लीजिए, फॉर एग्जाम्पल यू हैव एडमिनिस्टर एन इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट ऑन योर सब्जेक्ट.
आपने अपने सब्जेक्ट पे एक इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट किया और आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग दैट टेस्ट यू हैव डन द स्कोरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट एंड देन अ रिजल्ट केम दैट जिस पे भी आपने किया उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल इज एवरेज और इज इट अबव एवरेज और इट बिलो एवरेज और इट इज हाई और लो. तो 5 कैटेगरीज में आपके पास आए एक इंटरप्रिटेशन. So that result, which interpretation and the result is came to you after administering an emotional intelligence test on your subject. So that result you will share with your subject. This is also one of the ethical issue. आपने अगर किसी के ऊपर कोई भी प्रैक्टिकल किया तो उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है आप उससे शेयर करोगे. ठीक है, अंडरस्टूड. So voluntary participation, informed consent, debriefing and sharing the results of your study. ठीक है, done. Now the last and the most important ethical issue which you have to be definitely focus on, it is the confidentiality. Which is known as privacy. Confidentiality and privacy. Confidentiality or privacy. It is something an ethical issue which you have to follow at any way. ये वो ethical issue है जो आपको follow ही करना होगा. फॉलो करना मतलब आप इट इज़ वेरी मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर दैट दे शुड मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द प्राइवेसी ऑफ द person who is involved in that research or the participants or the subject of your practical. Confidentiality and privacy बहुत important part है. कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि अक्सर ऐसा होता है लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी इन विच टर्म. जैसे फॉर एग्जांपल एक और चीज़ें होती जो हम अक्सर मिस्टेक कर देते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल वन साइकोलॉजिस्ट विल शेयर हिज और हर डेटा विद अनदर साइकोलॉजिस्ट. सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट एथिकल. ठीक है, आपके पास आपके पेशेंट के डेटा है, प्लीज़ डोंट शेयर इट विद अनदर वन. किसी और से मत वो शेयर करिए. ठीक है, आप उससे किसी और से शेयर मत करिए. एज पर दे बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन एज यू आर एंड बेसिकली ये होता है, इट इज़ अ ह्यूमन नेचर कि जब हम एक ही प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो वी डिस्कस विद ईच अदर अबाउट आवर केसेस, अबाउट आवर सब्जेक्ट. सो विच इज़ नॉट एथिकल. ये एपीए ने कहा है, एपीए की गाइडलाइंस है कि इट इज़ नॉट एथिकल. सो maintaining the confidentiality and privacy is very important because this is only the thing which develop the trust in your subject. आपके सब्जेक्ट का आपके ऊपर ट्रस्ट इसीलिए है क्योंकि आपने उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखा हुआ है, कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है. ठीक है, इन केस आप अगर ये कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी शेयर करते हैं तो वहीं पे ही कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो एंड हो जाती है. आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी प्राइवेसी को एंड कर दे रहे हो. So maybe in future the subject, if the subject will be able to find out such kind of information from any other source, so that person is not going to come into your experiment, as well as it convey the messages to other one also to not to participate in your experiment. So which is something not good on the part of an experimenter and the researcher. Okay, it is somewhere create an obligations on you which is not good. So it's very important that you should maintain the privacy. जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको सब्जेक्ट ने दिया आप उससे अपने तक रखोगे और दैट आप उससे ये भी कहोगे, यू विल कन्वे दैट वॉट एवर द इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग टू मी, trust me, I will keep it confidential. I am not going to share it with anyone. So here in this video, children, I discuss with you the ethical issues which you all have to follow and which a psychologist need to follow.
I hope you understand the thing properly. If you find any doubt, you ask to me in the classroom, children. Okay, thank you so much for carefully observing this video. Okay, so I hope, children, this is clear to you all, the ethical issues and ethical principle. Um, ठीक है, तो एथिकल इश्यूज आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो एथिकल इश्यूज क्या क्या हैं, सो इन्हें लर्न कर लेंगे प्रॉपरली। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, इन्फॉर्म कंसेंट, डीब्रीफिंग and sharing the results of your study, and the most important, maintaining the confidentiality and privacy. Okay, so I'm going to rub the board. Apart from these ethical issues, there are these are the points. There are some ethical points, issues or guidelines. जब भी आप कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हो या रिसर्च कर रहे हो तो आपको फॉलो करना है, जैसे लाइक रेस्पेक्ट द पर्सन, नेक्स्ट मेंटेन द डिग्निटी, मेंटेन द डिग्निटी, पर्सन की रेस्पेक्ट करना, डिग्निटी को मेंटेन करना, respect the person. Guidelines, sorry for that one, so sorry, guidelines. Okay, ethical issue, respect the person. जिस पे भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उसकी रेस्पेक्ट करनी आपको बहुत ज़रूरी है. मेंटेन द डिग्निटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. देन there should not be any kind of conflict. कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. देन क्या है, प्रॉपर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप शुड बी देयर. प्रॉपर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी इंटरपर्सन मीन्स बिटवीन द एक्सपेरिमेंटर एंड द एक्सपेरिमेंटी. उनमें जो रिलेशनशिप है, बॉन्डिंग है, एक प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए. दैट रिलेशनशिप प्योरली बेस्ड ऑन प्रोफेशनलिज्म. ठीक है, किस चीज पे बेस्ड होना चाहिए? प्रोफेशनलिज्म पे बेस्ड होना चाहिए, प्रोफेशन पे बेस्ड होना चाहिए. फाइन. रेस्पेक्ट द पर्सन, मेंटेन द डिग्निटी, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. प्रॉपर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्योरली बेस्ड ऑन प्रोफेशनलिज्म. ठीक है, सो ये सारे कुछ एथिकल इश्यूज हैं जो हमें फॉलो करने हैं, विच हैव टू बी फॉलोड. एंड गाइडलाइंस भी हैं. ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे इन योर नोटबुक एज अ नोट्स. फाइन. आई होप मेंटेन द डिग्निटी, एक रेस्पेक्ट, एक नॉर्म्स जो है बिटवीन द रिसर्चर एंड द पार्टिसिपेंट, वो मेंटेन रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन नहीं आनी चाहिए. ट्राई टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन. अगर किसी भी तरह की कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, क्लैशेस आ रहे हैं, ठीक है, डोंट फोर्स योर सब्जेक्ट टू बी कंटिन्यू विद योर प्रैक्टिकल और एनीथिंग. मे बी इन बिटवीन अगर सब्जेक्ट इज नॉट फीलिंग वेल और द सब्जेक्ट इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो आप उसको लीव करने के लिए परमिशन दे सकते हो. So one more point you can add it, you have to take care of the comfortable zone and the ease of your subject. So I hope children, यहाँ तक मैंने सभी चीज़ें complete कर दी. ठीक है, कुछ points left out हो गए थे which I discussed with you in this 5 minutes video. These are not discussed, so I discussed with you in this last. So I just hope ये clear हो गया.
आपको कोई भी डाउट होगा, you will ask to me in the classroom, children. Don't hesitate in asking the question, ठीक है? And must watch the video, then the questions will come. Okay? Thank you so much, children. Thank you.